जी सर, असाइनमेंट डिस्कस करवाएँगे ना?
Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. Can you see the screen? Yes, Yes. sir. So we were discussing assignment 8.2. Okay. 8.2. Just 1 minute. So the 8.2, we have discussed assignment 8.2 question number till question number 7, right? Okay. So now we are going to discuss question number 8. Question number 8. Okay. So in the question number 8 says that small ball of mass m is lying on the top of a massive ball of mass capital M, which is greater than m. Okay. So m is larger than. Okay. And they are both released from a given height simultaneously. If the small ball was at height h when it was released, then after the balls have collided once the ground, the small ball rises approximately to a height. Okay, so initially the situation is like this. Initially, there is ball capital M, and on the top of that there is ball small m. Okay, and the height is initially h. Okay, this height initially is h. Okay, and both are released. Okay, so after some point of time, what will happen? Both the balls will come here. Okay, so this large mass m will come here, and then here this small mass m. Okay, so now tell me, if a system is falling from height h, then when it comes to the ground, then what will be its velocity? कितना होता है अगर h है से आता है ना? It is under root 2gh, right? Okay, because half mv square is just mgh. The loss in potential energy is gain in kinetic energy. So v is 2gh. Okay, so now consider this. These both the balls will be coming with same velocity. V is equal to root 2gh. Now see, so this lower ball, which is capital mass, is also coming with downward velocity this, and this is also coming with downward velocity.
Now, at just one instant of time, what will happen is that this mass, capital M, will hit the ground first. Okay, it will hit the ground, and after hitting the ground, it is saying that the small ball कोलाइड कर जाएगा collide करेंगे, but it is given that it is not given that elastically, right? सर इलास्टिक नहीं दी Okay, so in the question, just write down that they collided with the ground elastically. समझ गए? Otherwise, we will not be able to, क्योंकि collision coefficient पे depend करेगा ना वो. यस सर तो इसीलिए क्वेश्चन में लिख लीजिए कि E मतलब coefficient of restitution with the ground is given as 1. ठीक है, तो देखिए जब ये वाला कैपिटल मास हिट करेगा ग्राउंड को तो इसकी वेलोसिटी नीचे है √2gh, तो जस्ट आफ्टर हिट क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा इसका. हाँ सर. ना Yes, सेम वेलोसिटी से रिवर्स हो जाएगा ये. हाँ सर. अब ये इसका Vm जो है ऊपर हो जाएगा कितना, √2gh, और ऊपर से एक और आ रहा है ये वाला वेलोसिटी, ये तो अभी आ ही रहा है नीचे से डाउनवर्ड √2gh, ये स्मॉल m का. ठीक है, तो अब इसके बाद में क्या हुआ, अब इसके बाद में क्या हुआ कि तो अब सबसे पहले तो यहां तक लिख लेते हैं क्या है. ठीक है ना. अब इसके बाद में जो होगा कि ये जो कैपिटल मास m है ये फाइनली ऊपर जाएगा, तो दिस इज Vm, ये, और फाइनली जो है कैपिटल मास m ऊपर जाएगा. सपोज कर लेते हैं V से, V0 या फिर V प्राइम से, और ये जो है कैपिटल मास m. ठीक है, तो सबसे पहले तो सपोज this is situation 1. okay, दोनों आ रहे हैं. this is situation 2, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर जा रहा है, और situation 3 दोनों ही नीचे आ रहे हैं, दोनों ही ऊपर जा रहे हैं. ठीक है, so now see, यहां पर देखिए मतलब यहां पर तो यहां पर आप लोग देखिएगा कि इस केस में देखिए E is equal to 1. ओके, E is equal to 1 है, तो E is equal to 1 में मतलब कि पहले क्या था और बाद में क्या था उसके लिए. ठीक है ना, तो बताइए बाद में वेलोसिटी ऑफ क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, प्राइम माइनस V प्राइम माइनस इसको बोल देते हैं दिस इज Vm प्राइम एंड दिस इज Vm प्राइम. ओके, सो दिस इज V स्मॉल m प्राइम माइनस ऑफ कितना होगा V कैपिटल M प्राइम डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, Vm plus Vm. दिस इज Vm प्लस Vm. तो यहां से आपका आ जाएगा Vm प्राइम माइनस V कैपिटल M प्राइम इज इक्वल टू Vm प्लस Vm कितना हो जाएगा, 2 into √2gh. यस सर दिस इज वन इक्वेशन. ठीक है, Vm प्लस Vm. ठीक है, अब देखिए 2 और 3 के बीच में आप, ठीक है, 2 और 3 के बीच में आप वो मोमेंटम लगा दीजिए कंजर्वेशन. ठीक है, तो बताइए यहां पर इनिशियल मोमेंटम कितना है, m जो है स्मॉल m वो नीचे आ रहा है √2gh से, तो m इंटू माइनस
√2GH। ओके, जो कैपिटल एम वाला है वो ऊपर जा रहा है √2GH से, कैपिटल एम इंटू √2GH प्लस इज इक्वल टू, फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली जो स्मॉल एम है ऊपर Vm प्राइम से जा रहा है सपोज, प्लस कैपिटल एम सपोज V कैपिटल एम प्राइम से जा रहा है। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन दी हुई है कि स्मॉल एम जो है काफी छोटा है कैपिटल एम से, है ना, तो स्मॉल एम काफी छोटा है कैपिटल एम से, तो यहाँ पर टर्म कैपिटल एम वाला है, कैपिटल एम वाला है, यहाँ पर टर्म है स्मॉल एम वाला, स्मॉल, तो ये टर्म नेग्लिजिबल होंगे इन दो टर्म्स के करस्पॉन्डिंग, है ना। यस सर। इसका मतलब क्या है कि ये टर्म हम अप्रोक्सीमेटली कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि जीरो होंगे इसके करस्पॉन्डिंग। Vm पे डिपेंड नहीं करता, Vm प्राइम पे। किस पे? Vm प्राइम पे, हाँ वही बता रहा हूँ ना कि Vm प्राइम जो है ये स्मॉल एम प्राइम सर, स्मॉल एम वाला। स्मॉल एम वाला, हाँ सर, स्मॉल एम Vm स्मॉल एम प्राइम वाला। हाँ नहीं तो LHS का फर्स्ट पार्ट सर। उस पे उतना डिपेंड नहीं करेगा, हम देखेंगे एक बार Vm प्राइम निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि डिपेंड करता है, काफी कम होगा वो, है ना, होगा तो कुछ ऑर्डर का होगा, लेकिन जो m है वो काफी बड़ा दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका जो Vm प्राइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √2GH। इसका मतलब है कि बॉल जो है हिट किया दूसरे बॉल को, तो उसकी वेलोसिटी में उतना फर्क नहीं आएगा, है ना, दिस इज अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब Vm प्राइम इतना आ गया हमारे पास, तो Vm प्राइम इतना आ गया, तो यहां से देखिए स्मॉल कितना आएगा, स्मॉल Vm प्राइम, दिस इज इक्वल टू 2√2GH प्लस √2GH, तो स्मॉल m प्राइम आएगा आपका 3√2GH। अब बताइए अगर वेलोसिटी 3√2GH है तो कितनी हाइट तक जाएगा, है ना, कैसे करेंगे, √3 कंजर्वेशन कर देंगे, है ना, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो आप, एनर्जी कंजर्वेशन ऑन मास m। ठीक है, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है, सपोज इसको मैं रेफरेंस 0 ले लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सब चीजें, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हाफ m Vm प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू mg इंटू h सपोज। ठीक है, तो m से m कैंसिल हो गया, तो आपका h आएगा, दिस इज Vm प्राइम स्क्वायर, h आएगा आपका Vm प्राइम स्क्वायर बाय 2g। अब बताइए Vm प्राइम स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 इंटू 2gh डिवाइडेड बाय 2g, तो आपका h आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स h, मतलब जो हाइट आएगी वो ओरिजिनल हाइट से 9 टाइम्स होगी, तो आंसर आपका B हो जाएगा। अब आप जो पूछ रहे थे कि Vm प्राइम ज्यादा नहीं होगा, तो हमने ये अप्रोक्सीमेशन किया तो भी Vm प्राइम कितना आ रहा है, 3 इंटू √2GH आ रहा है, हाँ सर, है ना, और यहाँ पर Vm कितना है, √2GH, तो देखिए डबल या टिबल हो रहा है सिर्फ, लेकिन m जो है ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स, समझ गए, दैट्स व्हाई। और सर इसमें डाउट ये था ना सर कि क्वेश्चन में लिखा है कि स्मॉल एम वाले के लिए मेंशन करके रखा है कि स्मॉल वाला जो बॉल है उसकी हाइट h है, तो सर ये ऐसा सोच सकते हैं इसमें कि दोनों का जो मतलब शेप है, मतलब साइज है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस एक काफी ज्यादा डेंस है, तभी वो हाइट हम दोनों के लिए h ले रहे हैं। हाँ यू आर राइट, हाँ ये अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा कि दोनों का हाइट सिमिलर, क्योंकि रेडियस तो नहीं दिया है ना, रेडियस की जानकारी, और लिखा है सर कि स्मॉल एम से h है। हाँ हाँ, और रेडियस के ऊपर से जानकारी भी नहीं दी हमें कुछ, हाँ सर, इसीलिए sometimes in the question you have to assume something based on the given information। आपने जो इलास्टिक कोलिजन बोला था वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोला था, तो जो Uh, आपने E अप्लाई किया है वो m नहीं, और this is with ground and also with between them। तो ऐसे क्वेश्चंस को मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन में, ये करेक्ट कर लेगा क्वेश्चन ये। क्या ऐसे क्वेश्चन में
मतलब ये सफिशिएंट डाटा कहलाएगा सर ऐसे क्वेश्चंस में, अगर ये ऐसे स्टेप? दिस क्वेश्चन मैं नहीं बोलूंगा कि दिस इज सफिशिएंट डाटा। इसमें सबसे पहली बात तो इसने काफी, एक तो पहली बात तो सबसे पहली बात तो इसने ग्राउंड और बॉल्स के बीच में इलास्टिक कोलिजन देना चाहिए था, है ना। और दूसरी बात, इसने जैसे आप बोल रहे थे कि हाइट एच है, तो उसने स्कीमेटिक में देखिए हाइट एच इस तरीके से बना रखा है कि इसका कैपिटल एम काफी नीचे जा रहा है ना। तो उसमें कंफ्यूजन ये हो रहा है कि इसका हाइट एच लेंगे तो नीचे वाला क्या लेंगे, है ना। तो दूसरी बात, इसने स्कीमेटिक इस तरीके से बनाना था कि दोनों का रेडियस काफी कम है और हाइट एच काफी ज्यादा है। तो एक इंफॉर्मेशन तो आपने देनी चाहिए थी कि इलास्टिक वाली, और दूसरी इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए थी कि h इज वेरी वेरी लार्ज देन रेडियस। तो ये दो सर, इंफॉर्मेशन होती तो इसमें यस सर इसमें सेकंड वाले में पार्ट में पहले बड़ा वाला जो बॉल है वो नीचे जाके टकरा के मतलब कि इम्पल्स इम्पार्ट कर रहा है उस पे। हाँ हाँ सर ये कैसे आपने सोचा, क्यों कर रहा है ऐसे ही एक साथ क्यों नहीं जा रहा है, जबकि हाइट तो सेम है, तो कनेक्ट होके मतलब टच ही होके क्यों नहीं जा रहा है ऐसे क्वेश्चन नहीं, में तो थोड़ी? वही वही हमने बोला था ना कि जैसे हमने उस केस में क्या किया था, जब यहाँ से बॉल जा रहा है, उस केस में बॉल जा रहा है और यहाँ पर दो बॉल एक साथ रखे हुए हैं, उस केस में हमने वन का वन करके किया था ना। अच्छा ओके सर। सर चलिए लेकिन यहाँ इस केस में, इस केस में सर वो जैसे वो तो हॉरिजॉन्टली रखा है ना, तो कोई प्रेशर नहीं बन रहा है कि वो एक दूसरे से टच करेगा ही, लेकिन इसमें तो सर वो इस पे एक रखा हुआ है नहीं और तो कोई भी ऑप्शन नहीं नहीं है। नहीं उसमें रखा हुआ है तो भी प्रेशर नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं, तो ग्रेविटी में दोनों जीरो है। ओके। लेकिन फ्री फॉल में तो दोनों के बीच में नॉर्मल जीरो होगा ना। हाँ जब सर। ऊपर जाएगा तो सर तब तो नॉर्मल लगेगा ना। हाँ तब लगेगा ना, तो तब हम कर रहे हैं। यस सर। सर इसमें एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लिया हम लोग? एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर mgh पे है और यहाँ पर वेलोसिटी कुछ हो रही है, और कोई ड्रैग मतलब कि क्या कहते हैं डिसिपेशन फोर्स नहीं है, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्व होगी। फिर एक बार यहाँ से टकरा गया, उसके बाद में एनर्जी फिर से कंजर्व होगी। ग्रेविटी में कर रहे हैं ना, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके सर, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ना सर? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मतलब एनर्जी कंजर्वेशन जो मैंने लिया है इसमें और ग्राउंड सेकेंड, एनर्जी कंजर्वेशन किसी का रिस्पेक्ट से क्या मतलब होता है? सर ये सेकेंड वाले का मैंने लिया है ना, वहां से स्टार्ट किया है ना। हाँ ये सेकंड वाले का लिए, ये ग्राउंड। ओके सर एक क्वेश्चन नंबर 5 और देख लीजिए। अभी एक मेरी लिस्ट है उसमें से करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सो नाउ लेट अस डू, लिख लिया सब लोगों ने? So 1 minute. तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाए हैं, वहाँ पे क्या हम वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 से भी हम निकाल सकते हैं हाइट? हाँ हाँ उससे भी निकाल सकते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ओके now let us do question number 15. Question number 15 says that two blocks of mass 3 kg and 6 kg respectively are placed on a horizontal surface, ठीक है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सरफेस है ये, उस पे 1 kg का ब्लॉक है, 3 kg का ब्लॉक। This is 3 kg and it is connected with string, and this is 6 kg, 6 से 5 6 kg। एंड इनिशियली क्या दिया हुआ है आपका, इसकी वेलोसिटी इधर दी हुई है 1 मीटर्स पर सेकंड, और इसकी वेलोसिटी जो है इधर दी हुई है 2 मीटर्स पर सेकंड। उसने पूछा है कि मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एलोंगेशन मैंने आपको बताया था कि कंप्रेशन और मैक्सिमम एलोंगेशन कब होता है,
दोनों की जो वेलोसिटी दोनों सेम की होगी। वेलोसिटी सेम हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, मतलब फाइनली क्या होगा, ये 3 kg वाला है और ये जो है ये 6 kg वाला है, और दोनों की वेलोसिटी v हो जाएगी। तो सपोज ये भी इधर v से जाएगा और ये भी इधर v से जाएगा, तो ये होगा। ठीक है, अब बताइए सबसे पहली बात, सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व होगा, राइट? यस और नो? यस मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो इनिशियली बताइए क्या है मोमेंटम पी। पी कितना है बताइए? 3 इंटू -1, 3 और -1 प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू, फाइनली क्या है 3 और 6 कितना है 9, तो 9 इंटू, तो आपका यहां से v कितना आ गया, v आ गया 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 3 9, 9/9, तो 1 मीटर्स पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी जो दोनों के साथ में है वो 1 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, नाउ सारे फोर्सेस यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, स्प्रिंग वाला, इसका मतलब है कि एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। यस सर। नाउ लेट्स डू एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन मतलब EI इज इक्वल टू EF। अब इनिशियली ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक 3 की होगी हाफ इंटू 3 इंटू वेलोसिटी इज 1, तो 1 स्क्वायर। ब्लॉक 6 की होगी हाफ इंटू 6 इंटू वेलोसिटी इज 2, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइनली कितना होगा, हाफ इंटू टोटल मास इज 9 इंटू वेलोसिटी इज v स्क्वायर प्लस, अब स्प्रिंग में भी एनर्जी हो जाएगी अब, है ना, स्प्रिंग में कितनी एनर्जी होगी, हाफ इंटू k, k कितना दिया हुआ है 200, 200 इंटू इलोंगेशन सपोज x हो चुका है आपका, x स्क्वायर। This is the energy equation. So from here we'll get 3/2 plus here it will be 2, so 2 cancel, so 12. So that means 24/2 here is equal to, here it will be here v की वैल्यू कितनी है 1 है, तो here it will be 9/2 plus 200/2 into x square. Okay, so 2 will be cancelled from all the sides, so it will be equal to 3 plus 24, 27, 27 minus 9, 27 minus 9 18 divided by 200 is equal to x square. So 18 divided by 200 मतलब 9 divided by 100 is equal to, Sir, 0.3. so x square is 0.09, x is equal to 0.3 meters, 30 centimeter. Answer is A. Okay. सर ये सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी लेंगे कंप्रेशन और मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम में? हाँ वेलोसिटी सेम, अगर अपोजिट रहा तो क्या होगा सर? अपोजिट रहा तो उसका मतलब कि और होने की स्कोप है ना, वेलोसिटी में तो साइन के साथ होता है ना। मतलब वो फर्दर वो स्ट्रेच या वो कंप्रेस करेगा? हाँ देखिए अपोजिट होगा उसका मतलब क्या है कि और पॉसिबिलिटी है स्ट्रेच होने की, अच्छा, और हो जाएगा जब तक कि दोनों बराबर हो। ओके सर। सर ये जो मैक्सिमम इलोंगेशन का सर दिए स्टेटमेंट है, क्या बोले हैं? हाँ तो इसका जो सर इसका स्टेटमेंट दिए मैक्सिमम इलोंगेशन का, उसमें सर क्या बोले हैं, किस सेम वेलोसिटी?
मैक्सिमम एक्सटेंशन या इलोंगेशन जब होता है जब मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ये मैंने लिखवाया था ना आपको एक बार, एक सेम टू सेम क्वेश्चन हमने कंप्रेशन वाला किया था, याद होगा आपको, हाँ है ना। तो कंप्रेशन और इलोंगेशन जब मैक्सिमम होता है तो आपकी वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट्स की सेम होती है। हो गया। लिख लिया? ओके, so now the question number 20 says that two balls are dropped from same height h on a smooth horizontal plane and other on a rough plane, ठीक है, okay. Both have inclination theta and horizontal as shown in figure, ठीक है. Both the planes have same coefficient of restitution, okay. If the range and time of the first and second flight are r1 t1 and r2 t2 respectively, then what is the relation between times and ranges? Okay. Okay. तो सबसे पहले बताइए मुझे, जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, okay, तो so here it is given as दोनों में हाइट h से आ रहा है, अब पार्टिकल इधर आएगा, तो सबसे पहली बात तो पार्टिकल यहाँ पर आ रहा है, इधर यहाँ से, तो जब पार्टिकल यहाँ से टकराएगा इस तरीके से, और उसके बाद में फिर इधर जाएगा, तो पार्टिकल टकराएगा तो सबसे पहले बताइए इम्पल्स किधर लगेगा, उसके ऊपर नॉर्मल पे लगेगा, नॉर्मल अलाउंड, इसके ऊपर जो इम्पल्स लगेगा वो लगेगा नॉर्मल के अलाउंड, ठीक है, तो इधर नॉर्मल है मतलब इम्पल्स तो इधर लगेगा, ठीक है, ओके। तो अब एक बार डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं, सपोज दिस इज आपका एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज सपोज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो देखिए अब जो आपका इम्पल्स लगेगा वो लगेगा वाई डायरेक्शन में, ओके। तो दोनों केस में जो है, देखिए दोनों केस में सेम हाइट से रिलीज किया गया है ना, दोनों केस में सेम हाइट से रिलीज किया गया है, मतलब कि दोनों केस की अप्रोचिंग यहाँ पर जब वेलोसिटी होगी वो तो सेम होगी, है ना, v है सपोज आपकी अप्रोचिंग वेलोसिटी, है ना, तो v1 जो है आपकी v1 और v2 तो सेम होगी क्योंकि दोनों का हाइट h से रिलीज किया गया है, समझ गए बात, है ना। अब उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या होगा कि जब हाइट h से रिलीज किया गया और यहां तक पहुंचा ये, इसके बाद में यहाँ पे कोलिजन होगा, ठीक है। तो कोलिजन होने के लिए बताइए, कोलिजन जब होगा तो लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है, y एक्सिस है यस सर, ना, यस लाइन ऑफ इंपैक्ट आपका y एक्सिस है, तो इधर इसका है v1y, v1y, तो v1y है। तो कोलिजन के बाद में जब पार्टिकल जाएगा इधर, कोलिजन के बाद में जब पार्टिकल कहीं भी जाएगा इधर, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक v2y भी होगा इधर, मतलब v1y है और ये होगा v1 प्राइम y, v1 प्राइम इज आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो बताइए
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? E इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, है ना? तो v2 divided by u1 minus u2. हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ मोशन क्या है? v1 प्राइम y, समझ गए? यस सर। और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? v1 y, है ना? इसका मतलब क्या है कि v1 प्राइम y इज e टाइम्स v1 y। सिमिलरली आपका v2 प्राइम y, मतलब दूसरे केस में जब हॉरिजॉन्टल सरफेस में देखेंगे वो भी e इंटू v2y होगा, है ना? और v1y और v2y तो सेम है, तो v2 प्राइम y इज जस्ट e इंटू v1y इज इक्वल टू v1 प्राइम y। मतलब कि दोनों केस में जो ऊपर वाली वेलोसिटी है y डायरेक्शन वाली वो सेम होगी। समझ गए बात? सर एक बार वो फिर से बता दीजिए ना, वो समझ में नहीं आया वहाँ पे। कौन सी बात? हाँ वहीं पे सर, कि क्या हुआ वहाँ पे? देखिए, पार्टिकल यहां से आया और उसके बाद कोलाइड किया, है ना? तो पार्टिकल इधर से आया तो v1 है उसकी वेलोसिटी सपोज फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में v2 है सपोज, ठीक है? तो पहले केस में आया तो v1 है इसकी, तो v1 है तो v1 का इधर वाला कंपोनेंट सपोज v1y है। हाँ सर। तो v1 इज इक्वल टू v2 है, तो v1y इज इक्वल टू v2 होगा। ये v2 सर दूसरे वाले के लिए हम कर रहे हैं ना, जो दूसरा वाला केस है। हाँ, तो बट वहां से जब रिलीज किया गया और नीचे पहुंचेगा तो दोनों सेम हाइट से रिलीज किया गया, हाइट सेम दे रखी, तो हाइट सेम दे रखी, तो v1 v2 सेम होगा। हाँ सर। तो v1y v2y भी सेम होगा क्योंकि एंगल भी सेम है। यस सर। तो v1y v2y सेम है, मतलब बिफोर कोलिजन उनकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है। समझ गए? हाँ सर। अब इम्पैक्ट पे उसने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी सेम है, मतलब उसके बाद में भी v1 प्राइम और v2 प्राइम सेम होगा। हाँ सर वो सेम है। तो v1 प्राइम इज v2 प्राइम, मतलब कि जब कोलिजन के बाद में होगा तो y डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होगी दोनों केसेस में। यस सर। अब देखिए, अब क्या होगा कि हमारा टाइम पीरियड जो है वो क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? 2u साइन अल्फा बाय, यहां पर थीटा है अगर, तो इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है? g cos थीटा होता है ना? हाँ सर जी। और u साइन अल्फा क्या है? ये uy है ना, uy, राइट? u साइन अल्फा uy होता है ना? हाँ सर uy। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या है? t1 केस 1 में 2 इंटू u साइन अल्फा, तो uy क्या है? v1 प्राइम y बाय g cos थीटा। सिमिलरली t2 क्या है? 2 इंटू v2 प्राइम y बाय g cos थीटा। अब v1 प्राइम y और v2 प्राइम y बराबर है, तो t1 और t2 बराबर हो जाएंगे हाँ सर ना? तो दोनों की, क्योंकि देखिए दोनों की जो है ऊपर फेंकने की वेलोसिटी सेम है, तो सेम वेलोसिटी है तो सेम टाइम पीरियड होगा, क्योंकि एक ही मोमेंट पे दोनों हाइट मैक्सिमम हाइट अचीव करेंगे। ओके, तो t1 इज इक्वल टू t2 हो जाएगा, तो हमारा टाइम पीरियड तो जो है सेम आएगा। अब दूसरी बात क्या है कि रेंज की बात करेंगे, तो देखिए अब v1 प्राइम y की बात तो हमने कर ली है, अब एक बार देखिए कि x डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो x डायरेक्शन में जो है पहला वाला स्मूथ दिया हुआ है और दूसरा वाला जो है रफ दिया हुआ है। तो पहला वाला स्मूथ है तो सपोज इसकी इधर है v1 प्राइम x, तो पहला वाला स्मूथ है और दूसरा वाला रफ है, तो रफ वाला जो है बॉल के ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा ऊपर, समझ गए? हाँ सर। फ्रिक्शन लगाएगा तो उसकी वेलोसिटी को कम करेगा, वो इंपल्स होगा ना उधर, वेलोसिटी को कम करेगा। इसका मतलब क्या है कि v1 प्राइम x इज ग्रेटर देन v2 प्राइम x बिकॉज दिस इज अ रफ सरफेस। तो सरफेस रफ है इसीलिए ये तो स्मूथली आगे चला जाएगा, इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा उसके कारण उसकी वेलोसिटी कम हो, है ना?
अब हमारा रेंज जो है वो इस पे डिपेंड करता है हाँ ना। तो इसका मतलब क्या है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। तो टाइम पीरियड तो आपका सेम है। टाइम पीरियड सेम क्यों हो रहा है? क्योंकि वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम है। वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम क्यों है? क्योंकि एक ही हाइट से गिराए गए हैं और एक ही कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो जंप होने के बाद में सेम वेलोसिटी एक्वायर करेगा। तो T1 इज इक्वल टू T2 है। बट एक केस स्मूथ है, दूसरे केस में रफ है। तो जिस केस में स्मूथ है वहां पर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ज्यादा है, दूसरे केस में कम है, इसलिए रेंज 1 में ज्यादा है, 2 में कम। सर एक बार पीछे वाला क्वेश्चन 15 वाला जो आप अभी किए थे, एक बार वहां पे। एक बार इसको लिख लीजिए। लिख लिया सबने? यस यस सर। सर यहाँ पे आपने जब मैक्सिमम एलोंगेशन किया था तब आपने वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे मतलब ये किया था, मतलब दोनों एक ही साइड में जा रहे थे? हाँ, तो मैंने बोला ना कि वेलोसिटी सेम होती है ना, तो क्या बोल रहे हैं आप कि डायरेक्शन अलग हुआ? हाँ सर, मतलब 3 वाला बॉल इस तरफ लेफ्ट की तरफ जा सकता है और 6 राइट की तरफ जा सकता है, ऐसे मान भी शायद है। हाँ, तो सर तो मतलब वैसे भी केस हो सकता है ना, मतलब आपने ऐसे डिसाइड कैसे कर लिया कि दोनों एक ही साइड में जाएंगे और एक ही वेलोसिटी होगा? नहीं, मैंने बोला ना मैक्सिमम एलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन में दोनों एक ही वेलोसिटी चलते हैं। सर और डायरेक्शन भी सेम होगा? हाँ हाँ, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी तो होता है ना। ओके सर। सो मतलब ये इनिशियली स्प्रिंग जो है 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा था, फिर उसके बाद इनिशियली जो मास है ये 1 मीटर पर सेकंड। yes, और फिर पूरा सिस्टम भी 1 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, क्योंकि इस तरफ 2 है इस तरफ 1 है, तो टोटल सिस्टम भी 1 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं? हाँ सर। हाँ, यस। और तो फिर जब मैक्सिमम एलोंगेशन होगा तब भी सेंटर ऑफ मास 1 मीटर पर सेकंड से ही मूव करेगा? हाँ, और दोनों एक साथ ही मूव करेंगे तो दोनों भी 1 मीटर पर सेकंड। ओके सर। और सर अगर मैक्सिमम कंप्रेशन होता तब भी सेम होता। सर तब भी वो डिपेंडिंग होता ना कि इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इस तरीके से है कि इसमें एलोंगेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर वेलोसिटी इस तरीके से इधर और इधर, समझ गए? अच्छा ओके सर। तो कंप्रेशन की तरफ जाते हैं। सर मतलब ये मैक्सिमम एलोंगेशन जाएगा फिर वापस इनिशियल जैसे था वैसा आएगा, फिर वापस मैक्सिमम हाँ ऐसे होता है। हाँ, ओके यस यस ओके सर। सर यस। सर पिछले वाले क्वेश्चन में जो आपको दे रहे पिछली स्लाइड, तो इसमें अगर 3 kg का मास 2 मीटर पर सेकंड होता और 6 kg का 1 मीटर पर सेकंड होता, तो दोनों लेफ्ट साइड में भी से मूव कर। नहीं, इसका इधर आप बोल रहे क्या 2 होता? यस सर। और इसका इधर 1 होता? यस सर। हाँ, तो फिर P इनिशियल 0 हो जाता ना। 3 into 2 और ये 6, तो दोनों अपोजिट है और इक्वल है। ओके। इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाता, मतलब फिर फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाती। सर वेलोसिटी का हम डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं रैंडमली, मतलब एक ही डायरेक्शन में लेंगे तो उससे मतलब साइन के हिसाब से आ जाएगा सर। हाँ, साइन के हिसाब से आ जाएगा। बट आप इंट्यूशन से देख लेंगे कि 6 kg वाला है, ज्यादा मास भी है और ज्यादा से मूव भी कर रहा है, तो इफेक्ट ज्यादा इसका होगा ना। नहीं, बट यदि मास किसी का ज्यादा हुआ और वेलोसिटी मास ज्यादा कम हो तो आप कोई भी ले सकते हो, पर सेम लेना पड़ेगा। जी सर। है ना, कोई भी ले सकते हो, तो उसका नेगेटिव साइन आ जाएगा। सर जो नेट फोर्स जिस तरफ ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में मतलब सिस्टम मूव करेगा। नेट फोर्स एक्सटर्नल तो कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ मोमेंटम जिधर होगा, इनिशियल मोमेंटम किधर है इसका? 6 into 2 पॉजिटिव में है और 3 नेगेटिव में, तो 9 आगे की तरफ है ना। 9 यस सर। 9 आगे की तरफ है तो फाइनली भी आगे की तरफ ही होगा। दोनों का मास तो सेम नहीं है तो वेलोसिटी सेम कैसे होगा सर? अरे यही तो बोला ना मैं, मैक्सिमम एलोंगेशन और कंप्रेशन में वेलोसिटी सेम होती है। तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया तब तो सर, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया गया तो दोनों सेम वेलोसिटी तो नहीं होती। नहीं, मैक्सिमम एलोंगेशन ही बताया गया वेलोसिटी सेम होगी, ये कॉन्सेप्ट है। ये अगर आपको नहीं है तो लिख लीजिए कि when maximum elongation or compression happens। सर मतलब एक बात समझ में नहीं आया कि मतलब इनिशियली 3 kg लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा था, अब जब
आप बोल रहे मैक्सिमम एलोंगेशन है तो दोनों का सेम वेलोसिटी होगा, तो राइट की तरफ होगा। सर अगर राइट की तरफ चेंज हो गया तो फिर वो कंप्रेशन की तरफ जा रहा है ना, तो फिर वो मैक्सिमम एलोंगेशन कैसे होगा? Velocity of both the masses will be, ये हम आपका इसके बाद लिख लें, क्लास के बाद डाउट किया। ओके सर। सर इसमें अगर थीटा वेरी करवाते हैं इस वाले क्वेश्चन में 20 वाले, तो सर फिर हमें निकालना पड़ता ना कि वो उसका नहीं, वाई नहीं, डायरेक्शन वेरी करते तो फिर तो निकालना पड़ता है किसका क्या है, सब सेम नहीं आता फिर। नहीं, नहीं। सर यस सर वो वही पिछले वाले क्वेश्चन में सर, जैसे मतलब इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर से नीचे गिरी तो फिर हम फाइनल नहीं बता सकते ना कि किस एंगल पे मतलब जाके वो। नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आपका कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन पे। ई दिया नहीं होना ना, ई का बस मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस कुछ ऐसा। हाँ कि वो मतलब टकराने के बाद किस एंगल से वहां से जाएगी। यस यस सर यस। सर ये जो हमने टाइम पीरियड निकाला था इसमें सर हमने cos थीटा को इंक्लूड क्यों किया? क्योंकि जैसे कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2u sin अल्फा बाई g होता है, और ये तो हमने नया कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर ही लिया है। तो नहीं, बट वहां पर g होगा तो अब जो होगा ना ay क्या होगा, आप माइनस g cos थीटा होगा ना, क्योंकि g इधर है, g का इधर कंपोनेंट g cos थीटा होगा ना, समझ गए? यस यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। Question number 22 says, a ball of mass m is moving horizontally at a speed v, collides with a bob of a long single pendulum at rest. Okay, the mass of the bob is also m. If the collision is perfectly inelastic, the height to which the two balls rise after the collision will be given by. Okay, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनिशियली ये है, सर ऐसे आपने करा दिए थे सर, वो मोमेंटम कंजर्व फिर एनर्जी कंजर्व करा गए। यस, मोमेंटम कंजर्व फिर एनर्जी कंजर्व। दिस इज मूविंग विद हो गया है सर, कराए थे आप। इस टाइप का करा रखा है आपने। ओके, तो फिर डाउट किसका है? तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जब स्टिक होगा ना, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन जो होगा वो स्टिक हो जाएगा, तो ये मास जो है यहाँ पर 2m हो जाएगा, है ना, और ये v प्राइम हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच में आप मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, और फिर यहाँ से जो है किसी एंगल तक जाएगा, थीटा तक, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन है ना, तो यहाँ से यहाँ तक फिर एनर्जी कंजर्वेशन करता है, थीटा, यहाँ से यहाँ तक फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। Now let us move to next question, okay, which is veloc 24. Okay. So question number 24 says that
a ball of mass 0.2 kg rest on a vertical post of height 5 meters. A bullet of mass 0.01 kg traveling with velocity v meters per second in a horizontal direction hits the center of the ball. After the collision, the ball and the bullet travel independently. Okay. The ball hits the ground at a distance of 20 meters and the bullet at a distance of 100 meters from the foot of the post. The initial velocity v of the bullet is okay. ये शायद कराया है सर क्वेश्चन में। नहीं हुआ है सर। नहीं सर, ये नहीं हुआ। So here it is given as 50 meters, 5 meters. 5 meters. Okay. तो बताइए मुझे सबसे पहले, अगर किसी हाइट से एच से कोई पार्टिकल को थ्रो किया जाए हॉरिजॉन्टली, तो कितना टाइम लगेगा उसे आने में? √2h/g है ना? टाइम कितना लगेगा, क्योंकि वर्टिकल तो कुछ है नहीं, तो टाइम लगेगा आपका √2h/g। तो यहाँ पर जो है हाइट कितना है, 5 मीटर से, तो टाइम कितना लगेगा, √2 × 5/g, तो आ जाएगा 1 सेकेंड, है ना? अब ये देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है टाइम, है ना? वेलोसिटी इसमें केवल हाइट आता है, हॉरिजॉन्टल से पे गया तो वेलोसिटी नहीं आती। तो दोनों चीजें जो है वो सेम टाइम पे पहुंचेगी 1 सेकंड के बाद में, ठीक है? अब जो है उसने बोला है कि बुलेट और बॉल जो है दोनों अलग अलग पहुंच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अब इनिशियली जो है क्या है, इनिशियली बॉल ऑफ मास, तो ये बॉल है, तो बॉल को मैं बोल देता हूँ और एक बुलेट है, बुलेट को मैं 1 बोल देता हूँ, बॉल को 2 बोल, ठीक है? तो देयर इज अ बॉल और यहाँ से बुलेट आ रहा है। अब उसके बाद में जब कोलाइड करेंगे तो बॉल की कुछ वेलोसिटी होगी, बुलेट की कुछ वेलोसिटी होगी और बॉल की कुछ वेलोसिटी। तो इसको बोल देते हैं v1 और इसको बोल देते हैं v2, ठीक है? ओके, तो अब बताइए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल पूछे ना, बुलेट, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट v है सपोज। तो जब इससे और इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन कराएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इनिशियली बुलेट का कितना है, बुलेट का मास सपोज m1 और इनटू वेलोसिटी v है, प्लस बॉल तो इनिशियली रेस्ट पे है तो 0 हो जाएगा बॉल का, फाइनली m1 v1 प्लस m2 v2, ओके? और m1 m2 की वैल्यू क्या दी हुई है, तो m1 दिया हुआ है, मतलब बुलेट की मास दे रखा है 0.01, तो 0.01 इंटू v इज इक्वल टू आपका दे रखा है m1, मतलब 0.01 इंटू v1 प्लस m2 मतलब कि 0.2 इंटू v2, ठीक है? तो ये इक्वेशन था हमारे पास, ये ओके। अब देखिए, इसने एक और जानकारी दी है हमें कि रेंज जो है वो बॉल की जो है 20 मीटर है और बुलेट की 100 मीटर है, मतलब बुलेट 1 है तो रेंज ऑफ 1 r1 दिया हुआ उसने 100 मीटर्स, और रेंज ऑफ 2 मतलब बॉल का r2 दिया हुआ उसने 20 मीटर्स, ठीक है? तो अब देखिए, किसी का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है, तो बताइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? नो सर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जब रेंज होगी वो सिंपली क्या होगी, v इंटू टी होगी, हाँ सर, है ना? क्योंकि एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं, तो s इज इक्वल टू ut, a 0 हो जाएगा, तो at² वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है? तो r1 कितना होगा, r1 इज v1 इंटू टी,
है ना। तो यहाँ से हो जाएगा R1 कितना है हमारा 100 मीटर्स इज इक्वल टू V1 इंटू टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड, तो V1 की वैल्यू आ गई 100। सिमिलरली R2 कितना है, वो भी हॉरिजॉन्टली है, तो V2 इंटू टी। R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 मीटर्स दी हुई है, 20 इज इक्वल टू V2 इंटू टी कितना है, उसको भी 1 सेकंड लगेगा, तो V2 इज इक्वल टू 20। तो इसको यहाँ पर रख दो V1 और V2 को, 0.01 इंटू V इज इक्वल टू 0.01 into V1 is 100 plus 0.2 into V2 is 20। ठीक है, तो आपका V आ जाएगा यहाँ से 0.01 से अगर डिवाइड करेंगे तो 100 प्लस 20 into 20, तो V आ जाएगा आपका 100 प्लस 400, सो 500 मीटर्स पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा डी। Just coming in 2 minutes, just write it down.
So now question is, सर yes, सर अगर कोई क्वेश्चन दिया है 2 पॉइंट के बीच में हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं किसी भी हाँ, क्वेश्चन में, हाँ, तो उस 2 पॉइंट के बीच में हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? नहीं, कोलिजन के केस में एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ लगा सकते हैं? इनइलास्टिक केस। हाँ, तो और कोई 2 पॉइंट में लगाना पड़ेगा जिसमें नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों सेपरेट चीजें हैं ना। एक ऐसा थोड़ी है कि मोमेंटम कंजर्व होगा तो एनर्जी भी कंजर्व होगी। वैसे मोमेंटम कंजर्व होगा जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और एनर्जी कंजर्व होगी जब डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है। तो ओनली इन इलास्टिक कोलिजन आपका मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। ठीक है, ओके। मैं वही अगर इलास्टिक कोलिजन होगा, वो कोलिजन जो हो रहा है, तो यस, सेम 2 पॉइंट में हम लगा सकते हैं मोमेंटम और एनर्जी या हाँ, इलास्टिक होगा तो दोनों लगा सकते हैं सेम 2 पॉइंट में? हाँ, हाँ, इनइलास्टिक मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। इन इलास्टिक में मोमेंटम होता है, एनर्जी नहीं होती। यस। ओके, question number now let us see 20. Before 28, let us see 28 we are going to let's see question number 30. सर 27 नहीं बन रहा है। हाँ, एक बार देख लेते हैं 30 देखते हैं। 27 और 28 भी बाकी है आपका, ये दो 28 भी कराना है मुझे। Question number 30 says a smooth ball of mass m strikes a horizontal surface with velocity v in a direction making an angle 30 degrees with the normal to the surface as shown in figure. If the coefficient of restitution for the collision between the ball and the surface is e, and the ball was in contact with the surface for time delta t, the average force acting on the ball during the time is, okay. So देखिए, इधर ये सपोज v से आता है वेलोसिटी v, और एंगल जो है ये वाला दिया रखा है 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री दिया रखा है। तो अब इसके वेलोसिटी के सबसे पहले तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सा होगा? ये होगा, राइट? है ना, नॉर्मल टू द सरफेस होगा। तो बताइए मुझे, अब इसके बाद में बॉल जाएगा इधर कहीं पे, ठीक है, बॉल जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए मुझे, इनिशियली जो है वी वाई इनिशियल होगा कुछ और वी वाई फाइनल होगा कुछ। तो बताइए वी वाई इनिशियल कितना है? वेलोसिटी तो आपका इधर है और उसका एंगल 30 डिग्री है, तो कितना होगा? v cos 30 होगा 30 और डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा ये, तो v y i कितना होगा आपका? √3 v by 2 ना। और डाउनवर्ड को अगर इधर मैं मान लो y एक्सिस लेता हूँ तो ये होगा आपका jk और माइनस में, समझ गए? ओके, नाउ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, तो e इज व्हाट? सेपरेशन डिवाइडेड बाय अप्रोच। तो सेपरेशन कितने से हो रहा है? वो वी वाई एफ से हो रहा है सेपरेशन, है ना, और अप्रोच किससे हो रहा है? वी वाई इनिशियल से हो रहा है। इसका मतलब है कि वी वाई फाइनल आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये कितना है? √3 v/2, तो √3 इंटू ई वी बाई 2
और डायरेक्शन होगा जे कैप, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी इधर होगी और उसका मैग्नीट्यूड होगा √3 ev/2, जो कि हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से निकाला। ठीक, अब बताइए मुझे डेल्टा पी वाई कितना होगा। डेल्टा पी वाई होगा पी वाई फाइनल माइनस पी वाई इनिशियल। तो डेल्टा पी वाई कितना होगा आपका बताइए। पी वाई फाइनल कितना है, m इंटू वी वाई फाइनल। तो m इंटू वी वाई फाइनल कितना है, √3 ev/2, माइनस पी वाई इनिशियल इज m इंटू वी वाई इनिशियल। वी वाई इनिशियल कितना है, इतना, माइनस √3 v/2। ओके, तो आपका आ जाएगा डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू, आपका आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और √3 mv/2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका 1 + e। तो डेल्टा पी वाई इतना आ रहा है ना। तो f कितना होता है बताइए। f होता है dp/dt, या फिर किसी इंटरवल में देखें तो एवरेज के लिए डेल्टा p/dt होता है ना। तो आपका जो f हो जाएगा, आपका डेल्टा p कितना है, √3/2 mv इंटू 1 + e डिवाइडेड बाय डेल्टा t। उसने दिया है कि इतने टाइम तक लगेगा, ये आपका फोर्स हो जाएगा, है ना। दिस इज ये, और यहां से आएगा दिस इज एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो जो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और एवरेज फोर्स होता है डेल्टा p/डेल्टा t। तो सबसे पहले डेल्टा p निकाल लेंगे, और उसने समय दिया हुआ है कि डेल्टा t इंटरवल पे जो है कोलाइड हो रहा है, कोलिजन का टाइम डेल्टा t। ओके, तो ये आपका इतना फोर्स लगाएगा सरफेस। सर यस सर, यहाँ पे अगर हम मोमेंटम का y कंपोनेंट चेंज लेके देख रहे हैं डीपी का, तो फोर्स का टोटल फोर्स आ जाएगा। मोमेंटम का क्या देख रहे हैं, मतलब डेल पी वाई, हमने डेल पी एक्स हाँ, को नहीं। क्योंकि देखिए फोर्स इधर लग रहा है ना, फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। यस सर, नॉर्मल लगेगा ना फोर्स के ऊपर। तो डेल पी एक्स का कुछ इम्पैक्ट नहीं रहेगा। डेल पी एक्स तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ फ्रिक्शन थोड़ी दिया हुआ है। तो वी एक्स वाले में तो कोई फोर्स 0 है ना, तो वी एक्स इनिशियल इज वी एक्स फाइनल हो जाएगा। चेंज कहाँ होता है मोमेंटम, जहां पर फोर्स लगता है, तो फोर्स केवल वाई डायरेक्शन में है ना। तो वी वाई था जो वी एक्स इनिशियल होगा। क्या बोल रहे हैं, वी एक्स इनिशियल इज इक्वल टू वी एक्स फाइनल होगा, सही कहा। क्योंकि इसने दिया नहीं हुआ ना कि फ्रिक्शन है कुछ, फ्रिक्शन के साथ वी एक्स का क्या? फ्रिक्शन होगा तो फिर वी एक्स फाइनल लेस देन वी एक्स इनिशियल होगा ना, जैसे हमने एक वाला किया था इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन था। ओके ओके सर, यस सर। ओके, तब एक्स डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा, अभी एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। यस सर। अगर सर ये फोर्स एक्स के डायरेक्शन में होता तो वहां पे 1 - e हो जाता है। एक्स में होता तो मतलब समझा नहीं, किस तरीके से एक्स में होता। जैसे कि वाई में अप्रोच कर रहे हैं ना हम लोग, तो अगर वही डायरेक्शन अगर चेंज करके एक्स की तरफ होता तो फिर नहीं, आप इम्पैक्ट होगा तो इम्पैक्ट तो नॉर्मल पे ही होगा ना। जब फोर्स लगाएगा सरफेस पे, जब बॉल हिट होगी, देखिए बॉल जब हिट होगी यहाँ से, तो बॉल हिट होगी तो सरफेस तो इधर ही लगाएगा ना फोर्स नॉर्मल। यस ओके। अगर फ्रिक्शन होता तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं होगा, फ्रिक्शन होता तो फिर इधर एक्स में होता फ्रिक्शन। वही मैं पूछ रहा था सर, अगर फ्रिक्शन हाँ, होता, अगर फ्रिक्शन होता तो फिर एक्स में होता वो। या नॉर्मल लगा रहे तो कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा तो। हाँ सर यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है, तो मतलब हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसको मतलब हम लोग कंसीडर किए हैं। बट ये एंगल अगर 45 डिग्री एग्जैक्ट होता तो हम लोग एक्स कंपोनेंट से कंसीडर करते या फिर वाई कंपोनेंट।
नहीं, एंगल से क्या फर्क पड़ता है आपका कंपोनेंट? आपका कंपोनेंट हम y इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नॉर्मल फोर्स y डायरेक्शन में लग रहा है, एंगल से कुछ लेना थोड़ी है, कोई भी एंगल होता। बट सर ये है कि जब 45 पर होगा तो जितने फोर्स y डायरेक्शन में होंगे उतने x में भी होंगे। अरे भाई फोर्स तो आपका नॉर्मल लगेगा ना, फ्रिक्शन तो कुछ है ही नहीं, नॉर्मल लगेगा सिर्फ इम्पैक्ट। तो कितने भी एंगल से आए वो इम्पैक्ट तो नॉर्मल इधर ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि एंगल चेंज होगा तो इम्पैक्ट का एंगल चेंज होगा, इम्पैक्ट तो हमेशा नॉर्मल y में रहेगा। यस सर, बिकॉज़ लाइन ऑफ सेंटर ऑफ बॉडी से, बिकॉज लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो y एक्सिस में है। मतलब कि अगर एंगल अगर आपका मान लो अगर 90 होता, इधर से आता, तो भी फोर्स तो इधर ही लगता। अगर एंगल आपका कुछ ऐसा होता कि इधर से आता, तो भी फोर्स जो है इधर ही लगता। अगर एंगल एकदम पैरेलल होता तो भी फोर्स तो इधर ही लगता, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है ना ऊपर। तो फोर्स हमेशा y में ही लगेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द थीटा। ओके सर, मींस वाई मतलब कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाई डायरेक्शन में है और उस हाँ यस यू आर राइट। लिख लिया सबने? यस सर। ओके, अब देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 31। कहता है a small spherical ball strikes a frictionless horizontal plane with velocity v making an angle theta to the normal of the surface. If the coefficient of restitution is e, the particle will again strike after the time. Okay. प्रोजेक्टाइल वाला होगा। हाँ प्रोजेक्टाइल वाला ही होगा, सही कहा। तो ये इनिशियली यहाँ से आ रहा है, ये v से आ रहा है और एंगल जो है ये एंगल थीटा पे है, ठीक है। तो v होगा तो इसका vy इनिशियल इधर होगा, vy इनिशियल होगा और फाइनली इस तरीके से जाएगा ये, तो इसका vy फाइनल इधर होगा। तो बताइए सिंपली vy इनिशियल कितना है? इधर मैं x लेता हूं और इधर मैं लेता हूं y। तो vy इनिशियल कितना बताइए? माइनस v cos थीटा, सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन, राइट? यस सर, यस सर। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e दिया हुआ है, तो e इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ separation along the line of motion, along the line of impact, और velocity of divided by velocity of approach. तो velocity of separation finally होगा v1f vyf मतलब vy final divided by vy initial। तो यहां से आपका आ जाएगा vy final is equal to e into इसका मॉडुलस क्या होगा v cos थीटा। तो vy final e v cos थीटा, मतलब यहां से। अब यहां के बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन करें इस तरीके से। तो टाइम पीरियड क्या होता है आपका? टाइम पीरियड होता है 2u sin अल्फा बाय g होता है, और u sin अल्फा क्या होता है? 2 into uy होता है बाय g, है ना। और यहाँ पर uy क्या है? 2 by g into uy ये है कितना? ev cos थीटा। तो आपका आंसर हो जाएगा, टाइम जो लगेगा वो लगेगा 2ev cos थीटा बाय g। आंसर आपका हो जाएगा बी। मतलब इम्पैक्ट होने के बाद में वो उसकी वेलोसिटी जो है वो थोड़ी सी कम होगी और उसके बाद में जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो उसने पूछा है कि कितने टाइम के बाद द पार्टिकल विल स्ट्राइक द सरफेस अगेन।
Okay. लिख लिया सबने ये? यस सर। यस सर। Okay, now let us look at question number. Question number 35. A ball is dropped from a height h on the ground. हाइट h से ड्रॉप किया गया बॉल। तो बताइए बॉल को हाइट h से ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी उसकी बताइए। कितनी होगी v? √2gh। √2gh होगी, है ना? मतलब कि यहाँ पर v इज प्रोपोर्शनल टू √h है और h इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है। समझ गए, है ना? ओके। अब बताइए इसके बाद में ये बॉल जो है कोलाइड होगा। कोलाइड होने के बाद में बोला है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, तो कोलाइड होने के बाद में ऊपर कितने से जाएगा ये v प्राइम? कितने से जाएगा? ev से जाएगा सर EV से, है ना? तो ev से जाएगा। तो जब ev से जाएगा तो नया हाइट कितना अचीव करेगा h प्राइम? h प्राइम कितना अचीव करेगा ये? सर a स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2 v प्राइम स्क्वायर बाय 2g। यहां से v प्राइम स्क्वायर बाय 2g और v प्राइम स्क्वायर कितना है? e स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2g और v स्क्वायर बाय 2g कितना है? h है, तो e स्क्वायर इंटू h। तो आफ्टर द कोलिजन h प्राइम आपका हो जाएगा e स्क्वायर इंटू h। ठीक है, ठीक है। तो इनिशियली h था, फिर हुआ फर्स्ट कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन के बाद में हुआ आपका e स्क्वायर इंटू h, और इसने पूछा क्या है कि द हाइट अप टू विच द पार्टिकल विल बाउंड आफ्टर। ठीक है, अब सेकंड कोलिजन होगा तो अब नई हाइट इतनी है हमारे पास, तो इसमें एक और e स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर, यस सर। e टू द पावर 4 इंटू h। ऐसे ऐसे करते करते nth कोलिजन होगा तो e की पावर कितनी हो जाएगी? 2n 2 है ना, e की पावर 2n हो जाएगी। इतनी हाइट अचीव करेगा ये nth कोलिजन के बाद, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए हर एक कोलिजन के बाद में वेलोसिटी जो है ev होती है और हाइट जो है e स्क्वायर v स्क्वायर हो जाती है। हाइट जो है e स्क्वायर टाइम्स हो जाती है क्योंकि h इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, राइट? ओके, हाँ कौन सा बोल रहे थे आप? क्वेश्चन नंबर 28 और 27 भी बोल रहे थे आप? यस सर। Okay. Yes, sir. 27 says that a hammer of mass m falls from height h repeatedly to drive a pile of mass m into ground. The hammer makes a pile
penetrate into the ground to make a distance d into single blow. The opposition to the penetration is given by. Okay. अच्छा, एक बार बताओ, आज क्या है? ट्यूसडे है ना? यस सर। तो हमने सेंट्रल फोर्स का क्या डेडलाइन रखा था? वेडनेसडे। हाँ सर। यस सर। ठीक, तो कल आप मुझे उसके क्वेश्चन बता दीजिएगा, ठीक है? ओके सर, टेस्ट की डेट शिफ्ट हुई क्या? मैंने बोल दिया है मैम, आप देखते हैं वो कर देंगे, मैनेजमेंट के ऊपर है। सर अनाउंसमेंट भी नहीं है सर, अब तक कोई मैकेनिक्स का टेस्ट का अनाउंसमेंट नहीं, मैंने उनको बोल तो दिया है, अब वो उनके ऊपर है जब भी वो करें कंडक्ट। बट दिस मैसेज आई हैव कन्वेड कि आप उनको भी पता होगा ना कि आपके दो टेस्ट हैं। यस सर। यस सर। हाँ, संडे को ही 2 टेस्ट है क्या आपके? सर अगर आपका होगा तो 2 टेस्ट होगा, अगर नहीं तो एक ऑलरेडी। अच्छा अच्छा, ठीक। ओके, ठीक है, तो ये एक काम करते हैं, 27, 28 और अभी कितने बाकी हैं क्वेश्चन? एक 43, 44 बाकी है आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ढेर सारा है। 13 क्वेश्चंस रिमेनिंग। 4 minutes टाइम। ओके, ठीक है, तो ये अब हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। और सर 20 मिनट एक्स्ट्रा सर क्लास पढ़ा दीजिए हो सकता। नहीं, अभी मेरा एक और नेक्स्ट क्लास है ना अभी। सर वो स्प्रिंग वाला क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं अभी, तो वही वाला डाउट ले रहा हूँ मैं आपका। स्प्रिंग में देखिए क्या है, तो स्प्रिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका डाउट क्या है, सबसे पहले ये बताइए मुझे स्पेसिफिक। सर मतलब वो मोशन कैसे हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सर जब आप बोले कि वेलोसिटी दोनों का राइट साइड होगा, तो फिर राइट साइड होगा तो फिर वो मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा ना, फिर एलंगेशन कैसे हो रहा है? अगर दोनों अपोजिट जाएंगे तब वो मैक्सिमम। ये 3 kg है, ये 3 kg इनिशियली इधर 1 से जा रहा था, अब ये 6 kg है, अब ये 2 से जा रहा था, ठीक है? तो इनिशियली इसका वेलोसिटी इधर है और इसका इधर है, ठीक है? अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा और इसके ऊपर इधर लगाएगा। यस सर। तो इनिशियली क्या होगा कि ये तो इधर से जाता रहेगा, ये इधर से जाता रहेगा, तो इलोंगेट, ये इधर वेलोसिटी होगी, ये इधर वेलोसिटी होगी, तो इलोंगेशन होता रहेगा। यस सर। ना, इलोंगेशन ही होगा ना, क्योंकि इधर से इधर। अब आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इसके ऊपर इधर लग रहा है, और 0 होने के बाद फिर पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा, और पॉजिटिव होने के बाद में इसकी कम है ना, इसकी ज्यादा है इससे, तो फिर भी इलोंगेशन होता रहेगा। पॉजिटिव होने के बाद बढ़ते 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 एक लिमिट आएगी जब दोनों की बराबर होगी, तब जाकर मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। यस सर। समझ गए बात क्या होगा? सर एक बार और फिर से बता देखिए, इनिशियली सपोज t, ये सपोज t इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब एक एक टाइम स्टैम्प ले लेते हैं हम, ठीक है? यस सर। तो t इज इक्वल टू 0 से सपोज t इज इक्वल टू 1 पे, अभी यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पे ये नेचुरल लेंथ पे है, सपोज नेचुरल लेंथ पे, मतलब x क्या है, 0 है, x मतलब इलोंगेशन। समझ गए बात? यस सर। अब t इज इक्वल टू 1 पे सपोज इसकी वेलोसिटी इधर 1 थी ना, तो थोड़ी सी बढ़ेगी इसकी वेलोसिटी, यस है ना? कम होगा, मतलब वेलोसिटी कम होगी, मतलब -1 है तो -½ हो जाएगी कुल मिला के। यस है ना? तो -1 है, -½ होगी, और इसी कुछ होगी। तो यहां से यहाँ पे ये इधर जा रहा था और ये इधर जा रहा था, तो एलोंगेशन होगा स्प्रिंग में। यस। मतलब x बढ़ेगा। यस। ठीक है। अब t इज इक्वल टू सपोज किसी टाइम 2 पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है ना? यस सर। और इसकी कुछ वेलोसिटी है सपोज राइट में, है ना? यस। तब भी एलोंगेशन बढ़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग का एक एंड तो फिक्स है लेकिन दूसरा एंड आगे मूव कर रहा है ना? समझ गए?
यस सर यस। अब सपोज किसी t इज इक्वल टू 3 पे, सपोज इसकी वेलोसिटी इधर हाफ है और इसकी वेलोसिटी सपोज इधर 1 है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये आगे जा रहा है। यस सर। तो अभी भी इलोंगेशन होने के चांसेस हैं। यस सर। तो x बढ़ेगा। अब एक लिमिट ऐसी आएगी कि t इज इक्वल टू 4 पे इसकी सपोज इधर 3/4 हो गई और इसकी भी इधर 3/4 हो गई, तो अब जो है मैक्सिमम इलोंगेशन पहुंच जाएगा, समझ गए? सर जब t इक्वल टू 3 पे है तब 3 kg लेफ्ट की तरफ, हाफ की तरफ मूव कर रहा है। हाँ, हाफ से और ये 1 से, तो इसका मतलब क्या है कि इसके रेस्पेक्ट में ये अभी भी आगे मूव कर रहा है। यस सर। तो इलोंगेशन की संभावना अभी भी है। यस सर। बट एक t इज इक्वल टू 4 पे सपोज इसकी 3/4 हो गई, इसकी भी 3/4, तो अब दोनों की सेम है, तो ये इसकी रिलेटिव इसके रेस्पेक्ट में 0 है। हाँ यस। तो अब इलोंगेशन की संभावना नहीं है कुछ। और सर कॉम्प्रेशन में क्या होगा? हाँ, तो उसके बाद में क्या होगा कि अब इसकी हाफ होगी और इसकी 1 होगी, तो इसके रेस्पेक्ट में अब ये आगे जा रहा है, तो मतलब कंप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, तो मतलब अब x जो है कम होना शुरू हो जाएगा। ओके सर। समझ गए आप? यस सर। मतलब जब तक दूसरे वाले की रिलेटिव वेलोसिटी पहले के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है तब तक इलोंगेशन होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये बढ़ेगा, फिर इसकी हाफ है, इसकी 1 है तो भी बढ़ेगा, फिर दोनों की बराबर होगी तब बराबर हो जाएगी, एक्स मैक्स जो है इलोंगेशन हो जाएगा, है ना? यस सर। तो वो अब रिलेटिवली देखो उसको। ओके सर यस। t इक्वल टू 2 जब होगा 2 सेकंड पे, हाँ तब 3 kg का वेलोसिटी 0 हो जाए होगा तब हाँ, t इज इक्वल टू 2 पे इसकी हाँ, वेलोसिटी 0 होगी। तब 3 kg का वेलोसिटी तब 0 होगा ना जब स्प्रिंग मैक्सिमम इलोंगेट होगा, क्योंकि वो स्प्रिंग को तोड़ के तो लेफ्ट साइड और नहीं जा सकता, तो तभी तो होगा ना मैक्सिमम इलोंगेट होगा। वेलोसिटी 0 तब थोड़ी होगा, वेलोसिटी तो 0 जब होगा जब उसके ऊपर इनिशियली से लग रहा है 1 मीटर पर सेकंड के बाद फोर्स लग रहा है, तो फोर्स के बाद में जब एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी, तो थोड़ी कि स्प्रिंग पे मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तब। तो मैक्सिमम इलोंगेशन अगर नहीं होगा उसका, तो वेलोसिटी उसका 0 क्यों हो? अरे मैक्सिमम इलोंगेशन जो होता है ना वो किस केस में होता है कि ये वाला पॉइंट फिक्स है आपका, ये वाला पॉइंट फिक्स है, तब जाके इसकी वेलोसिटी जब 0 होगी जब मैक्सिमम इलोंगेशन, समझ गए? लेकिन यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी तो मूव कर रहा है। ओके सर। 2 क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल डाउट्स है, ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे अभी। सर इसमें कुछ डाउट है सर। हाँ, इसमें बताइए सर t इज इक्वल टू 1 पे ही हमने 0 से ही हमने क्यों मान लिया कि वो वापस से लेफ्ट वाला जो है वो डिके करने लगेगी उसकी स्पीड, क्योंकि इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स इधर लगाएगा ना, फोर्स। सर तो और फर्दर नहीं जा सकता हूँ? स्प्रिंग फोर्स इधर लगाएगा तो वेलोसिटी इधर है, फोर्स क्या इधर है, करेगा? तो एक्सेलरेशन इधर है ना। और सर 6 का भी तो इसको कम करेगा वेलोसिटी को। 6 का भी तो कम होना चाहिए ना सर? हाँ, 6 का भी कम होगा ना। अच्छा ओके, मतलब ये सर मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव 2 मीटर पर सेकंड और इसकी 1 मीटर पर सेकंड होगी। नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हमने देखा था ना, कितनी थी? 1 थी ना शायद। इंडिविजुअल्स में बात कर रहा हूँ सर, ये इंडिविजुअल ब्लॉक्स की मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव वो करेंगे ना? नहीं, ये तो सर मैक्सिमम इसकी इधर 1 है और इसकी इधर 2 है, इसके बाद में इसकी भी कम होना शुरू हो जाएगी ना। और उसके बाद सर ये मोशन रिपीट होगा ना बिल्कुल ऐसे ही, फिर बिल्कुल ऐसा ही। अब एक लिमिट के बाद में जब दोनों का मैक्सिमम इलोंगेशन होगा फिर कंप्रेशन वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। फिर ये मैक्सिमम 1 से राइट की तरफ जाएगा और वो 2 से लेफ्ट की तरफ जाएगा, फिर ऐसे करके। अच्छा ओके सर। तो कुल मिला के आप ये सोच सकते हो कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ऑसिलेट करें। ऑसिलेशन हो रहा है, एग्जैक्टली। यस सर, थैंक यू सर। ओके सर, अगर 2 बॉडीज कोलाइड कर रही हैं तो और क्या कंडीशन होगी कि एक बॉडी कोलाइड करके वापस उल्टी डायरेक्शन में आ जाए, अपोजिट डायरेक्शन में? 2 बॉडीज कोलाइड कर रही है और क्या होगा? ऐसी क्या कंडीशन होगी कि जो एक बॉडी जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाए? नहीं, वो तो डिपेंड करेगा कि उनके मास क्या है, उनकी वेलोसिटी क्या है और कोएफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तीनों चीजों पे डिपेंड करेगा ना। ओके सर। ओके, तो कल तक आप लोग सेंट्रल फोर्स कर लीजिएगा, फिर हम उसके डाउट्स लिख लेंगे। और 9.1 9.2 दोनों लेंगे आप? पहले आप 9.2 लेंगे, उसके बाद 9.1। ओके सर।
सर ऐसा है ना कि मतलब एक दो क्लास शाम को ले लेते ना, उसमें सारा डाउट क्लियर हो जाता है, इसके बाद हम लोग पैरेलली सब करने लगते तो अच्छा होता सर। शाम को सारा डाउट क्लियर होता मतलब कि जैसे क्लास जो है ना से आधा घंटा करीब ज्यादा अगर 2-3 क्लास में हो जाए तो मुझे लगता है कि जितने भी हम लोग के प्रीवियस डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग नहीं, पैरेलली तो अभी मेरी शाम को भी यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी होती है ना, तो वो टाइम शेड्यूल के हिसाब से चलता है। ओके सर। स्लॉट अवेलेबल। ओके, मैकेनिक्स का कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? मैकेनिक्स का कोर्स देखिए अभी हमारा आई कैन नॉट से फॉर श्योर, बट I'll try to finish it by maximum to maximum 10th of November, 10 to 15. ओके सर। Okay. उसके बाद रिलेटिविटी भी आगे पढ़ाएंगे? Relativity, yeah, I'll discuss with the management, but इसमें तो नहीं है, but एक बार बात करूंगा मैं वहाँ पे। ओके, मैकेनिक्स वाले सर ही पढ़ाते हैं। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सर। see you Thank you, sir. थैंक यू। क्या सर